जब आप कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने जा रहे हो तो स्टार्ट फ्रॉम योर होम. represented India at the Commonwealth Youth Peace Ambassador Network. तो उषा दी ने मेरे को 3 सवाल पूछे, आज भी मेरे को याद है. तो आई वॉज लाइक टेकन अ बैक. सेवा, संघर्ष एंड समर्पण. उस टाइम पे वो चीज़ चुभता है कि अरे यार ये कैसे कर दिया हमने. कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं कहेगा कि आप बिजनेस करो, मौका दे के जंग करेंगे. 3 days में वी वर एबल टू हेल्प 70,000 पीपल. Today, we are honored to introduce you Mr. Dipen Ghadia. His involvement in Model United Nations and community service has been distinguished and also has organized HLCC MUN and also represented India at the Commonwealth Youth Peace Ambassador Network. His deeds are also recognized by UNICEF and also is featured by campaigns in Dettol and the TEDx Gateway. His deeds extend far beyond and wide. Further, he is also a devoted Bhakt of Ram, and also his principles and beliefs add to the principles of Seva, Sangharsh and Samarpan. Join as we embark on his journey as he follows the path of सच्चाई का साथ देना, न्याय का पालन करना और धर्म की ओर बढ़ना. We welcome you to the show, sir. थैंक यू आकांक्षा. Firstly, it's a very big deal कि आप जूनागढ़ से आए हो यहाँ पे हमारे लिए, because also मतलब easy नहीं है कि आप अपना रूटीन मैनेज करके आओ एंड या आप पॉडकास्ट के लिए आए हो. दैट इज बीन अ वेरी बिग डील, सो थैंक यू सो मच. थैंक यू. And also you are a renowned figure in the field of MUN in the Gujarat circuit. So can you please start by telling that how has that been an impact कि आपने पहले HL से ही आपका डेलीगेशन शुरू किया था and now you're the executive board member and also the deputy director of HLCC MUN Society. Yes, so I joined the college in 2015 after clearing my 12th from Junagadh, and further there was an orientation program given by Bushradi and other seniors in the same auditorium where we conduct the Lok Sabha these days. So I was sitting here at last second row, I guess, and they explained everything about what MUN is, how you can impact in society via it, how the MUN can impact in your life. So I thought let's give it a try. I and one of my friend joined in as a delegate in Lok Sabha, and it was a very fabulous thing that we spoke around like 2 or 3 times in 2 day session. Next week, I guess Parucha sir came in. He was one of our faculties, and he asked how many of you have participated in the MUN, and only 2 people raised hand. That was I and my friend. So sir called us on the stage, acknowledged our efforts, and said that everyone should follow these things, everyone should follow our path. And that day was something that pinched me inside, that I can be one of the person who can inspire someone, or I can be the reason for someone to make them participate in such activities, and along with that I can grow myself as well. So that was the time. Further in 2016 I skipped for a year. I was not part of the HLCC MUN in any of the capacity, and in my third year I again one of my friend who was in the secretariat, and asked me that let's go and do MUN activities. I was like, no, I don't want to join. I want to focus on studies and stuff. So he said me, अरे तू एक बार आ तो सही, बहुत मज़ा आएगा. I said चलो चलते. So I went there, and he grabbed me and put in front of Bushradi. इसको join होना है. Bushradi is like, which year? बोला third year. We don't take OC from third year. So I was like, भाई चलना छोड़ना अभी. अरे तू रुक भाई. मैं बोला चलो ठीक है. तो फिर उसने रिक्वेस्ट किया कि बुशरादी ले लो, ये वो, ही इज़ आवर गुड फ्रेंड, हमारे ग्रुप का ही है. तो बुशरादी ने मेरे को 3 सवाल पूछे, आज भी मेरे को याद है. इंग्लिश बोलना आता है? बोला यस. स्पॉन्सरशिप लाएगा? मैं बोला यस. डेलीगेट्स लाएगा? मैं बोला यस. काम पे लगो. So that was how I joined the organizing committee in the third year, and that was the addition. We doubled the delegate from the previous year, and it was 555 delegate.
in that very year, and I was part of the secretariat as the hospitality head. And बिगेस्ट पोस्ट ऑफ एचएल, सबसे ज्यादा काम उसी पोस्ट के अंदर होता है. You have to run for 3 days. एब्सोल्युटली. तो उस दिन मैंने 3 दिन के अंदर हॉस्पिटैलिटी के अलावा सारा कुछ किया था. आई वॉज रनिंग ऑन एवरी फ्लोर ऑफ द कॉलेज, और हर ईबी मेरे को पर्सनली जानता था थर्ड डे को. सो दैट वॉज द फीलिंग ऑफ गिविंग, जिसके बेस पे HLCC MUN सोसाइटी आज चल रहा है. And next year in 2019, to my surprise, I was at home, and after party of next edition was going on, and I got to see the story of the then secretary, then Director General Dhyanvi Patel, with me, Aditya, and yes, us three were in the story, and she wrote with the deputy directors of HLCC MUN society. So I was like taken aback that ये क्या Surprised, हाँ, shocked. क्या हो गया, कैसे हुआ, क्या है. तो मैंने तुरंत उसको कॉल किया, बोला मेरे को कुछ मालूम नहीं है, आप बुशरा दी को कॉल करो. And then I got to know that I and Adi were appointed as the deputy directors of MUN society in 2019. Since then there is no looking back. How was that feeling कि मतलब पहले आप स्टूडेंट थे एंड देन आपको पता भी नहीं था कि आपको ये पोस्ट अलॉट हुई है. Yes. सो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही था कि एक ट्रस्ट हमने बिल्ड किया था भरूचा सर और बुशरा दी के तरफ की. आई एंड आदि कैन गिव टू द सोसाइटी वाया MUNs, और जो हमने अपकमिंग ईयर्स में भी वो बना के रखा है. एंड ग्रेजुअल डेज में इट वाज द सिचुएशन कि हम एक एक चीज़ सारा सब कुछ डिसाइड करके करते थे. वी ऑल्सो टेक अप्रूवल्स, और आज भी ये चीज़ कंटिन्यू हो रहा है. बट टुडे व्हाट आई एंड आदि फील इज कि वी आर नॉट एट एनी पोस्ट लेसर देन बुशरा दी एंड भरूचा सर. वी जस्ट गिव द थिंग कि सर ये चीज़ करना है, ये चीज़ हो रहा है. सर इज़ लाइक गो अहेड. बुशरा दी को भी ये चीज़ बोलते हैं कि दी ये चीज़ करना है, ये चीज़ हो रहा है, कर लो. सो अभी वो ट्रस्ट का लेवल इतना है कि अगर हम बोल दें कि दी कल से हर महीने एक MUN करना है, तो बुशरा दी भरूचा सर भी लाइक हाँ कर लो, बिकॉज उनको पता है कि इफ़ वी आर गिविंग सम थिंग्स वी आर वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर इट. बट ऑब्वियसली अभी भी मतलब हम भी अगर कोई काम करते हैं, वी हैव ऑल्सो ऑर्गेनाइज, आई हैव ऑर्गेनाइज लाइक 3 MUNs अंडर HLCC नाउ, 3 or 4, एंड एवरी वर्क व्हेन आई आस्क यू ऑल्सो फॉर अप्रूवल, आपका जब यही होता है कि हूँ जोइलाइस देख लेंगे, हो जाएगा. एंड जब हम वाइट बोर्ड पे भी लिखते हैं कि ये टास्क बाकी है, अगर हम 10 टास्क लेके उसमें से 6 में यही होता है, जब आदि भैया भी आते हैं डिपेंड सब आप वहाँ से भी मैनेज कर लेते हो. सो व्हाट इज दैट फीलिंग कि आप अपना काम वहाँ छोड़ के भी आप HL को इतना प्रायोरिटी देते. सो आई से दिस एवरीवेयर. और अभी पास्ट 1-2 साल से ये हुआ है कि आई एम रिप्रेजेंटिंग सम एजेंसीज ऑफ इंडिया, तो उसकी वजह से मेरे बायो में उनका नाम पहले है. बाकी 2 साल पहले तक, even before my trust name, there was deputy director at HLCC MUN. तो जो भी कुछ आज मेरे को मिला है या फिर जो भी एजेंसीज का पार्ट में बना हूँ, वो सारा सब कुछ इज़ बाय HLCC MUN. तो मेरा ये सर्वोपरम धर्म बनता है कि जब भी HLCC MUN को मेरी ज़रूरत है तो सबसे पहले मैं उधर अपना फोकस दूँ, बिकॉज उसकी वजह से आज जो भी एजेंसीज में मैं काम कर पा रहा हूँ वो उसकी वजह से हो रहा है. एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी मुझे HLCC से ही मौका मिला था एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनने का. दो इट वाज नॉट द फर्स्ट MUN I chaired. The first MUN I chaired was at DPS Gandhidham, and then I chaired HLCC in the capacity of deputy speaker, that is vice chairperson for GLA. तो GLA इंट्रोड्यूस करने का एक ब्रेन चाइल्ड ये था कि हमारी कॉलेज में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स गुजराती मीडियम से एडमिशन लेते हैं, तो हमारी कॉलेज के बच्चे हमारे इवेंट में ना आ पाए. वो एक डर था कि लैंग्वेज बैरियर आ जाता है जब आप MUNs में UN कमिटीज़ में जाते हो, तो मेजरली प्रेफरेबल ये होता है कि आप इंग्लिश में बात करो. उस टाइम पे भी इंट्रोड्यूस GLA,
एंड ये ध्यानवी वाला एडिशन, दैट इज 6th एडिशन. तो ध्यानवी एंड हिमालय ऑल्सो टुक वेरी वेल, और रिस्पॉन्स भी अच्छा था, और तब से हर साल GLA हो रहा है. સો થોડુંક બાયસ ક્વેશ્ચન છે આ, हाँ. પણ એવું કેમ છે કે તમે ખાલી ઇન્ડિયન કમિટીઝ જ ચેર કરો છો? વાય નોટ યુએન કમિટી? So Indian committees are loved by default, ભારત માતા. But I don't know કેટલા લોકોને ખબર છે, I have chaired UN committees, और एक ऑनलाइन UN कमेटी मैंने चेयर की हुई है, और एक इंटरनेशनल UN कमेटी मैंने ऑफलाइन चेयर की हुई है. आई हैव चेयर्ड UN कमेटी इन नेपाल. सो इट वाज माय फर्स्ट इंटरनेशनल MUN, और वो MUN में मैंने UN कमेटी चेयर की हुई है. बट UN कमेटी का दिक्कत मेरे को ज़्यादा इसलिए दिखता है, दिक्कत तो नहीं बोल सकते, बट इट इज़ अ ड्रॉबैक जो मेरे को सबसे पहले दिखता है, कि जब आप कोई प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने जा रहे हो तो स्टार्ट फ्रॉम योर होम, अपने घर से शुरुआत करो. तो ग्राउंड लेवल से ये आइडिया भी GLA का आना यही था कि इंडिया लेवल के इश्यूज वी आर डिस्कसिंग, किड्स आर डिस्कसिंग इंडिया लेवल इश्यूज, सो व्हाई नॉट गुजरात लेवल इश्यूज. तो थोड़ा क्रक्स डाउन करने के रीज़न में GLA आया था, और इसी की वजह से आई चेयर इंडियन कमिटीज़ मेजरली 99.95% आई मस्ट से, और उसमें भी 90% GLA होता है. तो यही एक रीज़न था कि इंडिया के प्रॉब्लम्स जो है वो पहले सॉल्व करे, बिकॉज देर आर मैनी ऑर्गेनाइजेशंस पूरे इंडिया में, पर फिर भी कहीं ना कोई लूपहोल है जिसकी वजह से इतने प्रॉब्लम्स है. तो पहला फोकस यही है. आई हैव सीन यू कि आप कितने पैशनेट हो. व्हेन यू चेयर इन फ्रंट ऑफ मी, आई हैव सीन यू चेयर लाइक 5 times नाउ. तो आई हैव सीन कि आप भी डेलीगेट बन जाते हो और आप खुद पार्टिसिपेट कर सकते हो डिबेट्स में, बिकॉज पर्सनली यू फील दैट यू नो यू शुड टेक पार्ट. एंड आप जब आते हो कमिटी में, there's another level of energy boost हो जाता है सब delegates में. They are so happy, they enjoy debating with you, they enjoy debating against you, because you मतलब आप एक माहौल बना देते हो ताकि वो लोग और एनर्जाइज हो जाए. सो आई हैव सीन यू कि आपका GLA के साथ तो एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है. सो GLA में डेलीगेट करना एक पैशन भी है, और ये आप कोई भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड से पूछोगे तो उनके अंदर का डेलीगेट कभी ना कभी ड्यूरिंग द कमेटी बाहर आता है, बिकॉज वो एक चीज़ अपन को लगता है कि मैं अगर EB बन जाऊंगा तो मेरे को अच्छा लगेगा. बट आप EB के साइड से देखोगे तो डेलीगेट इज़ अ फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर एवरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड, कि हमको अगर EB बनना है तो इट इज़ गुड, EB बन के बहुत अच्छा लगता है, इट इज़ आवर प्रिविलेज दैट वी आर सर्विंग एज एग्जीक्यूटिव बोर्ड. पर जो डेलीगेट होने में मज़ा है वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होने में नहीं है, बिकॉज बीइंग द डेलीगेट यू कैन फ्लो एवरी थॉट ऑफ योर्स इन द कमेटी. जब आप एग्जीक्यूटिव बोर्ड बन जाते हो तो एक लिमिटेशन आ कंट्रोल करना, एक लिमिटेशन आ जाता है. ग्रेजुअली व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग EBs इन 2018, और 2018 से आई डिड फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, तो उसी टाइम से थोड़ा ऐसा था कि डेलीगेट बन के ये करेंगे वो करेंगे. तो ग्रेजुअली फिर मैंने वो कम किया है कि खुद EB बन के भी खुद सीखते रहते हैं, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि अगर हम पॉइंट कोई फ्लो कर देते हैं कमेटी में, फिर बच्चे आके बोलते हैं कि सर आपने मेरा पॉइंट बोल दिया, तो उस टाइम पे वो चीज़ चुभता है कि अरे यार ये कैसे कर दिया हमने. तो ये हर एग्जीक्यूटिव बोर्ड के साथ कहीं ना कहीं होता है, और हुआ भी होगा. तो इसकी वजह से अभी डेलीगेट बनना इज़ वेरी मच रेयर दैट आई डू डेलीगेशन इन द कमेटी गेस्ट डेलीगेशन. बट HL में आई कैन नॉट रेजिस्ट. तो मेजरली HL में कोई एक ही कॉन्फ्रेंस ऐसा हुआ होगा जिसमें मैंने एज अ डेलीगेट पिच इन नहीं किया हो कमेटी में. बट जब भी मैं करता हूँ तब आई मेक श्योर कि मैं गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों साइड से करूँ. मैं सिर्फ कोई एक साइड से नहीं करता, बिकॉज यस. तो क्या है कि अगर मैं गवर्नमेंट साइड से करूँगा तो अपोजिशन जो ऑलरेडी वीक है उसको थोड़ा ऐसा हो जाएगा कि अरे अभी तो क्या हो गया सर, ऐसे प्रेशर कर रहे ये वो. तो आई ट्राई कि मैं दोनों तरफ से करूँ, बट येस इट इज़ मच फन देन बीइंग द एग्जीक्यूटिव बोर्ड. एब्सोल्युटली. We can show you clips जब भैया 0 hour करवाते हैं तब all everybody is so enthused, and
ऑल थैंक्स टू यू बिकॉज आप ही वो कमिटी वैसे चला सकते हो. वी नेवर सीन एनी अदर एग्जीक्यूटिव बोर्ड के वो इतना पैशनेटली इतना अच्छे से they handle it and we are very honored to have you with us. इवन आई गेट दिस फीडबैक्स कि जब भी 0 आवर खत्म होता है तो आई जनरली आस्क कि कैसा लगा सबको. अरे भैया बहुत मजा आ गया, हमने तो ये पहली बार देखा, ये वो बच्चे एकदम ऐसे प्रोटेस्ट वाले यस एंथू हो जाते हैं. तो मैं इसीलिए करवाता हूँ ये 0 आवर बिकॉज नॉर्मली जब भी आप ऐसे ऑथेंटिक लोकसभा में जाओगे तो ये साथ में मिलजुल के नहीं करते, अपनी अपनी जगह से करना होता है. इवन आप बारी बारी खड़े होके बोल सकते हैं, बट मैं इसीलिए ये इस रकस के साथ करवाता हूँ कि जो बच्चे नहीं बोलते वो भी शायद आके 2 शब्द बोलने लगे. तो एक ग्रुप डिस्कशन टाइप 0 आवर करने का मतलब यही है कि सब इन्वॉल्वमेंट ले और थोड़ा एक फन एलिमेंट इंडियन कमिटीज में मिले. But not just only the delegates, my whole entire OC is also at the 0 hour. Even the वो भी executive executive, everybody has at the 0 hour Yes. कि हम अपना lunch छोड़ देंगे but हमें ये देखना है. That is very fun. And just wanted to know that अभी जो current generation है, so what do you think that what MUNs will impact on this generation? How will they help them to grow and for their future endeavors? तो सबसे पहले तो एक ही चीज़ है कि जितने ज़्यादा बने उतने एम्यूएंस करो, चाहे कोई भी कैपेसिटी में करो, डेलीगेट बन के करो, ओसी बन के करो, या फिर आपको चांस मिल रहा है तो ईबी बन के करो. बिकॉज जब आप एम्यूएंस करते हो तो सबसे बड़ा चीज़ आपको मिलता है, दैट इज़ नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. क्योंकि आप अलग अलग विचारधाराओं के लोगों के साथ बातचीत करते हो, उससे आपको एक चीज़ डेवलप होता है कि मेरे मंतव्य से बाकी सारे लोगों का मंतव्य मैच नहीं हो रहा, तो मैं कैसे उसको अकोमोडेट करूँ. ये आपको आगे जाके लाइफ में भी सभी जगह पे काम आएगा. जब भी आप घर में भी कुछ बात करोगे तो आपके पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, आप अपने कलीग्स के साथ बात करोगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, आप अपने कॉलेज में जाओगे आपके फ्रेंड्स का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ चीज़ों पे अलग होगा. तो उस टाइम पे आपको खुद को डेवलप किया होगा आपने, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू आप ले सकोगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू पे आप सुन सकोगे कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. तो इससे एक बढ़िया क्वालिटी आप में आएगा, अग्री टू डिसएग्री. ये क्वालिटी अगर आप में आता है तो एक बढ़िया क्वालिटी है, बिकॉज ये आपको अपनी जॉब्स में भी काम लगेगा, अपने बॉस के साथ भी ये चीज़ आपको होने वाला है आगे. अगर बिजनेस करते हो तो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फादर के साथ, अंकल के साथ, किसी के भी साथ करते हो तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं काम आने वाला है. फर्स्ट थिंग इज़ दिस. सेकेंड इज़ कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट नॉलेज तो मिलने ही वाला है, चाहे जनरल नॉलेज हो, पॉलिटिकल नॉलेज हो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का नॉलेज हो. तो ये जो प्रैक्टिकली सीखने को मिलेगा वो कोई बुक या आर्टिकल या न्यूज़ चैनल आपको नहीं सिखा पाएगा. तो दीज आर द फ्यू थिंग्स कि आपको देखना चाहिए. थर्ड जो मैं करना सजेस्ट नहीं करूँगा वो होगा कि डोंट डू एम्यूएंस फॉर मॉनेटरी थिंग्स, या फिर डोंट डू एम्यूएंस फॉर गेटिंग जस्ट द बेस्ट डेलीगेट, मैं जीत जाऊँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ. देखो कंपटीशन में फर्स्ट आना सबको अच्छा लगता है, बट उससे कुछ सीख के जाओ, उससे भी बढ़िया चीज़ है. तो सिर्फ पैसों के लिए एम्यूएन मत करना, और अगर कोई कर रहा है तो उसके साथ जुड़ना भी मत, बिकॉज एट द एंड वो आपको सिर्फ 2 चीज़ नहीं सिखा पाएगा, दैट इज़ लर्निंग एंड कम्युनिकेशन. बाकी सारा सब आप सीख के जाओगे उससे. Very well said. And obviously MUNs, so I have also done a lot of MUNs, but I still hope that in future also I do continue that. And MUN से थोड़ा हटते हैं अब. We'll go into your personal life a little bit. Okay. So you have been very much active for the charitable events. I've seen कि एक article भी आया है NDTV 18 में आपका. So can you please say that आपने रूरल बच्चों के लिए हेयर कटिंग एंड ग्रूमिंग सेशंस भी ऑर्गेनाइज करे थे. So can you please highlight something about that? So well connected through MUNs only, because एक कनेक्शन लगना ज़रूरी है कि MUN कैसे हेल्प करता है रियल लाइफ में. ये कोई मैं सिर्फ आके बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है. So I started doing MUNs in EB since 2018. 2019 I was called by Rotrect MUN in Anand. So वहाँ जाके मेरे को पता चला कि रोट्रैक्ट जैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है.
Then I searched it for in Junagadh. So few of my friends were part of it, पर मेरे को मालूम ही नहीं था कि रोटरैक्ट जैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है. So I joined रोटरैक्ट in 2019. उसके बाद रोटरैक्ट में बहुत सारे पोजीशंस पे आई हैव सर्व्ड, और उसके अंदर ही हमने ये ग्रूमिंग वाला सेशन किया था, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ वी डू, एंड almost every year we cross 120 plus activities. Last year we crossed 150 activities, जिसमें social work भी आता है, fellowships भी आती है, international relations भी आते हैं with other clubs of the country and state. तो रोटरैक्ट में आने का ज़रिया भी MUN रहा है मेरे लिए. साथ में जो NDTV का आर्टिकल है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द वर्क आई हैव डन इन COVID-19 under the membership of YPAT. I was one of the member of YPAT from the first cohort of its generation unlimited of UNICEF. तो उसके अंदर हमने गुजरात लेवल पे जो काम किया था, उसकी वजह से इट वाज गिवन इन NDTV, और डेटॉल का स्वस्थ बनेगा इंडिया कैंपेन था, जिसके एम्बेसडर थे मिस्टर अमिताभ बच्चन. तो उसकी अंडर में ये आर्टिकल छपा था, जिसमें जो कोविड में हमने काम किया था इन द सेकेंड वेव 2021 में, वो सारा चीज़ वाज गिवन इन द आर्टिकल कि हाउ वी कन्वर्टेड आवर रिसोर्सेज ऑन टाइमली बेसिस. वी वर अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल एट जूनागढ़ लेवल. हमने एक वेबसाइट क्रिएट किया था, जिसमें 15 डेज में वी वर एबल टू हेल्प 70,000 पीपल विथ गिविंग देम टाइमली डिटेल्स ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द सिटी, और उनको साइकोलॉजिकली कैसे हेल्प किया, उनको रिसोर्सेज देने में कैसे हेल्प किया, ये सारा चीज़ इज़ इन द आर्टिकल. सो उसको गुजरात लेवल से इंडिया लेवल तक एस्केलेट किया गया था. और सेम चीज़ इज़ ऑल्सो printed by Ministry of Youth Affairs and its Young Warriors booklet. नहीं, सो वो 2 साल तक कम से कम चला था. मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने पूरे इंडिया से 15 लोगों को चुना था जिन्होंने कोविड में काम किया है. उसमें से आई वॉज वन एंड द ओनली फ्रॉम गुजरात. तो ये भी पूरा चीज़ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने भी प्रिंट किया था फॉर यंग वॉरियर्स. मेरे को 1 मिनट चाहिए सब सॉल्व करने को अंदर. एंड ऑब्वियसली मतलब यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू डू दिस, बट यू डू दिस जस्ट बिकॉज इट गिव्स यू इनर पीस, और इट फील्स नाइस कि आपको कम्युनिटी को यू हैव टू गिव बैक टू द कम्युनिटी. सो ड्यूरिंग कोविड सब लोग घर पे बैठे थे, तो बाहर कोई जा नहीं पा रहा था. सो माई रूटीन ड्यूरिंग कोविड वॉज आई वुड स्लीप एट अराउंड 2 or 3. I would wake up at around 5 or 6. Everybody's routine. हाँ, I am talking about night 2 or 3 and morning 5 or 6. Oh, नहीं फिर Yes. नहीं, मैं तो शाम वाला. So पूरे दिन में मेरा एवरेज कॉल रेट वॉज 50 to 60. और मेरा मैसेज रेट आई हैव नॉट काउंटेड, बट इट वुड बी अराउंड 200 to 300 एवरेज हर रोज़ का. तो ये इन एक दिन के अंदर वी वर इन कॉन्टेक्ट विथ 30 to 40 पीपल एट अ पर्सनल लेवल, जहाँ पे एक बंदा 30-40 बंदे को अटेंड कर रहा है. तो उसमें उसके सारे नीड्स आ जाते हैं, इवन आउट ऑफ जूनागढ़ एंटिल राजकोट एंड अहमदाबाद ऑल्सो वी हेल्प्ड लॉट ऑफ पीपल. 2-3 इंसिडेंट्स मेरे को याद है जो मैं ब्रीफ में बताऊंगा. वन वॉज इन अहमदाबाद, जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था. was a contact through MUN, one of my friend. तो उनके फादर के लिए we helped the refilling, और जूनागढ़ में we helped 5 or 6 year और I guess 2 year, I don't remember the age of the girl, जिसको रात को 2 बजे ऑक्सीजन की नीड थी. we were the mediators जिनने अरेंज करवा के दिया था ऑक्सीजन, जिसकी वजह से उसकी लाइफ वॉज सेव्ड. एंड अनदर वॉज कि राजकोट में देर वॉज अ ब्रेड विनर जिस फैमिली का, एंड ही वॉज वेरी सीरियस, एंड उसके फैमिलीज वर ऑन द वर्ज ऑफ डूइंग सुसाइड कि भाई अभी ये जाएंगे तो हम क्या करेंगे. सो उनको उस टाइम पे भी वी वर गिविंग साइकोलॉजिकल हेल्प, मेंटल सपोर्ट दे रहे थे.
कोविड के बाद सब लोगों ने देना शुरू किया, बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने, बट वी वर ऑफरिंग एज सर्विस टू सर्व During COVID. ड्यूरिंग द कोविड एज वेल. तो ये पूरा रूटीन था. माई फादर एंड मदर वॉज लाइक कि क्या करेगा, पूरा दिन फोन पे लगा रहता है. फिर 8-10 दिन बाद उनको पता चला कि आई एम इनटू दिस, एंड वी ऑल्सो प्रोक्योर्ड अ फ्यू प्रिवेंशन किट्स फ्रॉम अहमदाबाद ऑर्गेनाइजेशन. उनके साथ कोलैब करके हमारे ट्रस्ट ने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था. ऑन ग्राउंड जाके सारे फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन वर्कर्स को हमने दिया था, जो स्वीपर्स लोग होते हैं उनको, जो प्रिवेंशन किट था फ्रॉम बीइंग अफेक्टेड टू कोविड-19. सो वी डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड 100 किट्स. सो माई फादर टुडे ऑल्सो प्राउडली सेज टू समवन कि हमने कोविड में ये किया था, वी प्रोक्योर्ड दिस किट्स. It is a thing. Yes. क्या वो आपके बारे में बोले, of course he'll be so proud. सो दिस वाज द ब्रीफ कि कोविड में ये सारा चीज़ हुआ था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इंडिया लेवल पे इसको एस्केलेट किया गया था. Great. And ठीक है, moving forward, थोड़ा political side पे we'll go now. Okay. And अभी you've been known that Kashmir being a designated union territory. Yes. So what is your opinion of that being granted the statehood? Very dicey question though. पर MUN. yes, diplomacy starts here. सो MUN के पर्सपेक्टिव से भी लोग इसको देखते हैं, एंड एज अ नेशनल क्वेश्चन भी इसको देखते हैं. आई वॉन्ट से नेशनल इशू, बिकॉज इशू नहीं है ये. दिस इज़ द क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आंसर्ड टू द कश्मीरीज. बट जो अभी यूनियन टेरिटरी का स्टेटस है वो इसी वजह से दिया गया था कि जब 370 हटाया गया तो रेस्टनेस ना हो स्टेट के अंदर, और जो लोकल पॉलिटिशियंस है, लोकल इंस्टीट्यूट्स है जो कहीं ना कहीं एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स रखते हैं, वो लोग अपने मन मुताबिक जो चाहे जैसे चाहे करवा सके, उसकी वजह से ये नहीं किया गया था. बाकी अभी बहुत अच्छी तरीके से इलेक्शंस हुए हैं इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ कश्मीर. तो पॉसिबिलिटी है कि द थर्ड वेव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कैन गिव द स्टेटहुड टू द यूनियन टेरिटरी दैट इज कश्मीर. बट ये फॉरेन पॉलिसी भी इसमें इंक्लूडेड होती है, बिकॉज वी आर विथ sharing borders with 2 other major countries with whom we do not share a good relation. तो उसकी वजह से भी ये एक यूनियन टेरिटरी होना कहीं ना कहीं ज़रूरतमंद लगता है फॉर फ्यू टाइम, सम टाइम. तो लेट्स सी व्हाट गवर्नमेंट डिसाइड्स. बट जब भी उसको स्टेट का दर्जा मिलेगा, एक पूर्ण रूप में कश्मीरीज को अपना स्टेटहुड फर्स्ट टाइम मिलेगा आफ्टर इंडिपेंडेंस. हक मिले. Yes, Proper. after independence first time. Okay, so talking about the new Agniveer scheme that has been introduced, so आप सोचते क्या उसके बारे में? See, first of all, there are 2 sides of it. जो अग्निपथ स्कीम है जिसके अंदर अग्निवीर्स बनाए जाएंगे, तो सबसे पहले इफ़ यू लुक फ्रॉम द साइड ऑफ द स्टूडेंट्स और द यूथ हु वांट्स टू जॉइन द आर्मी, ये उनके लिए बोन है. ठीक है. बाकी जो बच्चे हैं या फिर बाकी जो लोग हैं जिनको आर्मी से कोई लेना देना नहीं है, दे आर थिंकिंग इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल एम्प्लॉय, तो ये उनका अलग पर्सपेक्टिव हो जाता है. बट जब आप ड्रॉप डाउन अप्रोच देखोगे उसका, तो इट इज़ वेरी मच एन एडवांस लेवल ऑफ NCC. तो NCC में यू गेट टू सर्व द सोसाइटी एट अ कॉलेज लेवल और स्कूल लेवल, बट उसको थोड़ा फॉर्मलाइज वे में 4 साल के लिए आपको इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिया जाए और उसके अंदर आपको ट्रेनिंग दी जाए. उसके बाद इफ़ यू आर विलिंग एंड यू आर सिलेक्टेड तो आपको सीधा IAF में एनरोल किया जाए. और ये सब भी फ्री में नहीं करना है जो आप NCC में करते हो, ये सब के लिए भी आपको पैसा मिलेगा. NCC में यू डोंट गेट मॉनेटरी रिवॉर्ड्स, यहाँ पे आपको पैसा मिलेगा. और इफ़ यू आर नॉट बीइंग सिलेक्टेड तो भी आपको पैसा मिलेगा. यू आर गेटिंग 10 लाख रुपीज़ इफ़ यू आर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड. तो जो लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है.
जो लोग नहीं जुड़ना चाहते, सिर्फ पैसों के लिए जुड़ रहे हैं कि मैं चलो 30,000 कमा लूंगा महीने का, फिर 33,000 कमा लूंगा दूसरे साल महीने का, हाँ फिर 40, फिर लास्ट में 10 लाख दे के निकल जाऊंगा, मेरा तो क्या ही फ्यूचर रहेगा। भाई तुमको फ्यूचर आईएएफ में चाहिए, तुमको आर्मी में फ्यूचर चाहिए, तभी जाओ। अगर सिलेक्ट नहीं होते हो देन गो थ्रू द प्रोसेस दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। ये तो तुमको एक एडवांस लेवल दिया गया है कि जहाँ पे तुम अपना लेवरेज ले सकोगे इफ यू आर मोर एलिजिबल देन द पीपल गोइंग थ्रू द नॉर्मल प्रोसेस। तो ये तो एडवांटेजियस थिंग है। पर इसको जैसे मैंने बताया कि अगर दो साइड से सोचोगे तो कभी भी वो मैच नहीं हो पाएगा। बट इफ यू आस्क टू द पीपल प्रिपेयरिंग फॉर आर्मी एंड आईएएफ और फोर्सेस ऑफ इंडिया, तो उनके लिए एक अच्छा स्टेप है। वेरी ट्रू। मतलब कर सकते हैं बट अच्छे से करो तो, वरना एब्सोल्युटली। इफ यू आर, ये यही चीज हो गया कि आपको अगर ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ गए तो आपका सिलेक्शन एचएल में हो जाएगा। अगर नहीं आए तो आप गुजरात यूनिवर्सिटी के कोई भी कॉलेज में बीकॉम कर लो, बीकॉम तो आपका होना ही होना है। ऐसे हो या वैसे, अच्छे से जहाँ होगा। हाँ, इफ यू आर एलिजिबल तो आपका एचएल से होगा। Talking about your career profile, you're also an entrepreneur. Yes. So, can you please share your entrepreneurial journey अभी तक, and what do you think कि मतलब अभी जो बच्चे हैं they should go at which path? जॉब करो या फिर खुद का बिजनेस करो? आपके लिए क्या more sense बनाता है कि what is more sensible? देखो, कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं कहेगा कि आप बिजनेस करो, बिकॉज कोई भी रनर आपको ये नहीं कहेगा कि आप रनिंग करो। दे डोंट वांट कॉम्पिटिटर्स। अच्छा, ओके, ठीक है। तो ये गुजराती बिजनेसमैन का आइडिया होता है कि आपको अगर उसको पूछना है कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, गुड, अच्छा चाले છે, शांति છે, तो हाँ। सो ये आपको कभी कोई सजेस्ट नहीं करेगा कि आप बिजनेस कीजिए। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस तो आप अपने हिसाब से उसको चला पाओगे। इट विल बी योर ऑर्गेनाइजेशन, आप उसको जैसे मोल्ड करना चाहो कर पाओगे। सो इट इज़ दिस थिंग जो मैं बहुत क्लियरली समझा दूँ इन शॉर्ट कि इफ़ यू बाई सम रेडीमेड क्लोथ्स तो आपको क्लोथ के अंदर फिट होना है, दैट इज़ जॉब, यू गेट एवरीथिंग रेडी। इफ़ यू वांट टू स्टिच क्लोथ्स ऑफ योर साइज़ तो उसके लिए आपको पहले मटेरियल प्रोक्योर करना पड़ेगा, फिर आपको एक अच्छा सा टेलर ढूंढना पड़ेगा, उसको आपका सारा नाप देना पड़ेगा, फिर वो आपको स्टिच करके देगा। दिस इज़ अ प्रोसेस। सो ये प्रोसेस अगर आपको हेक्टिक नहीं लगता है तो फिर आप बिज़नेस कीजिए। आपके हिसाब से आप अपना कपड़ा डिज़ाइन कर पाएंगे, आपके हिसाब से आपकी साइज़ का कपड़ा डिज़ाइन होगा, आपके डिज़ायर का कपड़ा डिज़ाइन होगा। बाकी जो रेडीमेड मिल रहा है वो आप ले लो। सो दिस इज़ इन वेरी सिंपल वर्ड्स कि अगर आपको बिज़नेस करना है सो यू विल हैव टू गो ऑन ग्राउंड, सारी चीज़ें एक बार एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। और अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो भी इंडिया में देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज़, दो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैन नॉट बी डिनाइड। बट वहाँ पे जब आप बात करते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट है तो उसमें से देखो कितने लोग ऑलरेडी जॉब छोड़ के कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। देयर आर पीपल हु आर लिविंग जॉब्स ऑफ 20 लाख पर एनएम वाला पैकेज, 15 लाख पर एनएम वाला पैकेज। हाँ, सो देयर आर पीपल हु आर लिविंग जॉब्स फॉर गेटिंग मोर बेटर जॉब्स। सो दिस इज़ नॉट a factor of employment that can be counted because ये उनकी इच्छा से वो लोग नहीं कर रहे हैं, voluntarily unemployment है। तो ये बाइफर्केशन भी देखना ज़रूरी है। कोई अगर आके बोलता है चलते चलते कि चलो मैं भारत को जोड़ लूँगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना है, तो ये बात मुमकिन नहीं होगा। सही बात। एंड लुकिंग एट योर डाइवर्स पोर्टफोलियो, आप रोट्रैक्ट के साथ हो, सेंसिडेंस ट्रस्ट के साथ हो, इतने सारे लीड्स करते हो साथ में, कम्युनिटी सर्विस, बिजनेस। सो हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? मतलब आप कैसे हर चीज़ को इतना परफेक्टली, हाउ डू यू गेट योर टाइम सॉर्टेड एंड सब कुछ मतलब अफेक्ट ना हो ताकि कुछ भी? टू बी ऑनेस्ट, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ अफेक्ट होती है। अगर इसको ख़त्म करने जाएंगे तो वो बाकी रह ही जाएगा। बट इसके लिए कई बार लड़ना भी पड़ता है विद द क्लोज्ड वंस, इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स। सो दिक्कत यही आ जाता है कि आई एम वेरी प्रिविलेज्ड
कि लड़ मर के भी मेरे पेरेंट्स कहीं ना कहीं मेरे को हर चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं कि तेरे को ये चीज़ अच्छा लग रहा है, यू डू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ग्रेटफुल टू देम. और अगर सारा चीज़ एक साथ करने जाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट है कि टाइम कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ से छूटेगा. सो यू गेट इनटू एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप. तो एक साथ कोई 3-4 पोस्ट पे डिप्लॉय होना was not the thing, but gradually year by year I got the appointments for different post from different organizations, जिसमें से 3 या 4 नेशनल लेवल है. तो सारी चीज़ों पे बारी बारी यू कीप डूइंग द वर्क एंड उसके बाद एक प्रैक्टिस हो जाता है कि इसको इसी तरीके से करना है, इसके थ्रू करवा सकते हैं, इसमें अगर मैं ये टाइम पे ना जाऊँ तो चलेगा, आई कैन गिव माई वर्बल कम्युनिकेशन एज वेल. तो फिर वो एक रेपो बन जाता है उन लोगों के साथ भी जिनसे काम कर रहे हैं. तो बेसिक क्रक्स में यही है कि अगर आपको इच्छा हो रहा है कुछ करने का तो आप करके रहेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो वो नहीं हो पाएगा. आपको 24 घंटे कम नहीं पड़ते? ऐसे देखने जाऊँ तो लास्ट ईयर ड्यूरिंग द MUN ओनली देयर वाज द थिंग कि लास्ट ईयर आई गेस, और लास्ट ईयर आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट टाइम, but I was serving as the president of Rotaract as well, and MUN भी था. I was last year Rohan's section year. तो उस टाइम पे चीज़ ये हो रहा था कि I was going to office 10 to 9, 10 to 9, और उसमें से 1-1.5 घंटे का मेरा लंच ब्रेक होता था. फिर आप ऑनलाइन हमारे साथ आ रहे थे, आई रिमेंबर. सो 9 बजे में जैसे ही ऑफिस से निकलता था, आई गेट इनटू द मीटिंग विथ द MUN, और जैसे ही वो मीटिंग ख़त्म होता था 10, साढ़े 10 बजे, आई गेट इनटू द मीटिंग विथ रोटरैक्ट, और 11, साढ़े 11 बजे जाके आई वुड डू माई डिनर. तो फिर उसके बाद सारे पर्सनल काम फिर 1-2 घंटे में करने रहते हैं. सो ये पूरा चीज़ फिर इसी तरीके से होता है कि जितना टाइम आपके पास जिस तरीके से है उस तरीके से आप सारी सी चीज़ें उसमें अकोमोडेट कीजिए. सो आप किसी को भी 24 घंटे देंगे तो उनके लिए कम पड़ेंगे इफ़ दे वांट टू वर्क फॉर 24 आवर्स इन अ रो. That's right. And recently you went to Kuala Lumpur also. Yes. And so could you please share that how was that experience कि आपको वहाँ जाने का मौका मिला? It was such a big thing. It was a prestigious thing also. Absolutely. So could you please share your insights कि आपने one thing that you learned from there, one good thing and one bad experience that happened with you? Bad experience तो थोड़ा नेशनल लेवल पे है. तो गुड एक्सपीरियंस से शुरू करते हैं कि गुड एक्सपीरियंस वाज आई गॉट इनटू टच विथ फ्यू मोर इंडियन यूथ देयर, कि 3-4 फ्रेंड्स मेरे बहुत अच्छे बन गए हैं अभी, जो यस कनेक्शंस बाय डिफ़ॉल्ट, जो अभी अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, दो कनेक्टेड टू सोशल सर्विस, और वी विल बी लेवरेजिंग देयर कनेक्शंस इन दिस एडिशन एज वेल. और अगर वो हो जाता है तो इट विल बी cherry on the cake. But to be honest, good thing या फिर जो जर्नी था वो इस तरीके से शुरू हुआ था कि one good day I was having dinner और मेरे को मेल आया कि you have to go to Kuala Lumpur on as the representative for Commonwealth Youth Peace Ambassadors Network. So PAN world का जो CY PAN network है उसके अंदर we are around 50 यूथ एम्बेसडर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, और उसमें से मुझे चुना गया था कि अक्रॉस वर्ल्ड जितने भी साई पैन एम्बेसडर्स हैं उसमें से आप जाइए एंड रिप्रेजेंट CY PAN. बाकी जो तीन लोग आए थे वो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ से नॉमिनेट होके आए थे. सो देयर आल्सो वी वर होस्टेड बाय द एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन मलेशिया फॉर डिनर कि, और उस पर भी वहाँ भी इंडिया पॉलिटिक्स, यूथ इन पॉलिटिक्स पे बातें हुई कि हाउ यूथ कैन चेंज. तो एक वो डायरेक्ट गेटिंग इनटू टच विथ गवर्नमेंट एट दिस लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल इज़ अ प्रिविलेज इन इटसेल्फ. और बाकी वहाँ पे जो हमने इनपुट्स दिए फॉर मेकिंग कॉमनवेल्थ यूथ एम्बेसडर्स नेटवर्क इन एशिया. So I am also privileged to be a founding member of it.
among various countries of Asia. There were around 10 countries from Asia जिसके यूथ वहाँ पे आए थे, एंड दे वर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स टीम. जो बैड एक्सपीरियंस मेरे को लगा वो ये था कि एवरी कंट्री एक्सेप्ट इंडिया इन एशिया हैव अ यूथ काउंसिल, जो हर छोटे कस्बे तक एक यूथ नॉमिनेटर है फ्रॉम द गवर्नमेंट. तो वहाँ पे जो लोग आए थे दे वर रिप्रेजेंटिंग देयर गवर्नमेंट इन सम वे और अदर एज द यूथ काउंसिल मेंबर. इंडिया में यूथ काउंसिल है ही नहीं. अभी उधर एज अ फाउंडिंग मेंबर ये डिसीजन आया कि हु विल बी द मेंबर्स ऑफ द कमिटी. तो बाय मेजॉरिटी देयर वर द नेशंस जहाँ पे यूथ काउंसिल थे, तो उन्होंने लिख दिया देयर विल बी यूथ काउंसिल मेंबर्स एज द कमिटी मेंबर्स ऑफ काया. So Commonwealth Asia Youth Alliance was the name Kaya that we named it. So I was the representative from India कि how will be the design और क्या structure होगा. उसमें I said कि हमारे पास तो है ही नहीं. Being the nation as India, we do not have youth council. तो वो थोड़ा झिझक हो जाता है उस टाइम पे कि साला हम pardon my language but सारे इतने छोटे छोटे नेशंस है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, मालदीव्स है, मलेशिया है, सबके पास अपना खुद का यूथ काउंसिल है. वी आर द लार्जेस्ट यूथ ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे यूथ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, हमारे पास यूथ काउंसिल नहीं है. सो आई पॉइंटेड दिस आउट इन द मीटिंग एज वेल टू द एम्बेसडर फ्रॉम इंडिया एंड द नॉमिनेटेड सेक्रेटरी फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ यूथ इन इंडिया जो वहाँ पे आए थे. मैंने उनको पॉइंट आउट किया कि मैम वी डू नॉट हैव यूथ काउंसिल इन इंडिया, हाउ विल वी बी स्टैंडिंग अगेंस्ट दिस नेशन इन द नॉमिनेशन फॉर आर कैंडिडेट्स. सो उस टाइम पे वी बाय डिफ़ॉल्ट हैव टू से इट कि इंडिया अपना रिप्रेजेंटेटिव सोच के भेजेगा किसको भेजना है. एट द एंड the ma'am or the secretary who represented Ministry of Youth at that level went as the representative from India. So कहीं ना कहीं वो चीज़ एक खटकता है कि यूथ का इतना बड़ा पॉपुलेशन है, we do not have youth council, but in another way India is also not at that level कि उसको इन सारी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं यूथ की ज़रूरत है, या फिर इंडिया को कहीं ना कहीं इस चीज़ों पे लीडरशिप लेने की ज़रूरत है. बिकॉज इंडिया इज़ एट वेरी मच बिगर लेवल देन दोज कंट्रीज जहाँ पे इंडिया का लीडरशिप चाहे G20 हो, चाहे नो कंपैरिजन. बिकॉज ये सारी कंट्रीज़ को कहीं ना कहीं छोटे लेवल से लीडरशिप लेने की ज़रूरत अभी पड़ रही है, बिकॉज दे वांट टू कम्पीट विथ इंडिया विच इज़ नॉट पॉसिबल इन नियर फ्यूचर अराउंड 30 years. तो ये चीज़ है कि ये थोड़ा भी आइडिएशन अगर लगाएंगे तो कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएशन आता है. सो दिस वाज प्रिटी गुड. और आई मस्ट से मलेशिया जाना चाहिए यार, मलेशिया अच्छा है, घूमने जाओ, अच्छा है, मज़ा आएगा. ओके, अभी डन विद द सीरियस पार्ट. डन. अभी विल मूव जस्ट टू अ स्मॉल सेगमेंट which is the rapid fire round. इसमें फंसाते हो तुम लोग. फटाफट आप आंसर्स दोगे अंडर 7 seconds. ओके. ठीक है. अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, who is the better future prime minister? योगी आदित्यनाथ. नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी, who had a more transformative tenure as a PM? Cannot be compared though because tenure term is very different. But अटल बिहारी वाजपेयी एज अ लीडर, बिकॉज अगर वो नहीं होते तो आज नरेंद्र मोदी नहीं होते एज अ PM. टॉप 3 क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड श्री राम विच यू फॉलो. डिफिकल्ट क्वेश्चन है फिल्टर करना फॉर द 3 क्वालिटीज. फर्स्ट इज मौका दे के जंग करेंगे, हनुमान को भेजेंगे कृपया छोड़ दीजिए सीता मैया को, पर अगर नहीं मानेंगे तो लंका चलेगी. ये एक चीज़ है कि आई फॉलो एज वेल. मैं किसी को रिक्वेस्ट करूँगा पर अगर वो नहीं होगा तो मैं अपने हिसाब से करूँगा. सेकंड इज़ कि सच्चाई को पकड़ के रखिए, अगर झूठ का सहारा लेंगे तो कहीं ना कहीं फंसेंगे. एंड थर्ड इज़ आई वांट टू कल्टिवेट मोर, थोड़ा कल्टिवेशन है, थोड़ा और उसमें कल्टिवेट करना है, दैट इज़ रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन.
ऐसा नहीं है कि डोंट डू द रिस्पेक्ट, बट कहीं ना कहीं वो एक कलयुग के मानव की तरह कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी, फॉर एग्जांपल मेरी मदर के साथ वो कुछ बार बोल देते हैं अपन कुछ, तो वो एक कंट्रोल करना चाहता हूँ मैं कि वो एक कल्टीवेशन आए, बिकॉज देर इज़ वेरी मच गुड एग्जाम्पल गिवन बाय वेरी नोन स्पीकर कि जब पीछे से रावण की मौत हो गई तो पीछे से उनकी धर्मपत्नी आ रही थी राम के पास, तो उनकी परछाई देख के भी राम खड़े हो गए थे। तो ये इतनी छोटी सी भी क्वालिटीज़ डेवलप करना, इट इज़ अ वेरी ह्यूज टास्क, बट आई एम गेटिंग थ्रू इट। कहीं ना कहीं कभी ना कभी जाके हो जाएगा। Demonetization or GST implementation, which was a bolder economic reform? In terms of success, Success. GST. In terms of bolder decision, demonetization. Rahul Gandhi or Priyanka Gandhi, who is more effective of reviving the Congress? Whom we are talking about? Rahul Gandhi or Priyanka Gandhi? So मैंने ये थोड़े दिनों पहले ही बोला था कि चंद सीटों के आने की वजह से आप जो जनता है उसको उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे 140 करोड़ की जनता का, बट इतना सारा चला है तो लोगों को एक थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम भी कुछ कर लेंगे। बट जब 35 पार्टियां एक साथ आके 240 सीटें या फिर 190 सीटें लाती है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रन अ गवर्नमेंट एट दीज स्टेज जहाँ पे इंडिया में इतनी डाइवर्सिटीज़ है। अगर अकेले लड़ोगे और 190 सीट लेके आओगे, देन वी विल इवन क्लैप फॉर यू। जब आप अकेले लड़ रहे हो, आपके 3 नंबर की सीटें नहीं बन रही है, और दैट इज़ इन 15 ईयर्स टर्म। पिछले 3 टर्म से यही चीज़ है। 2 इंक्रीमेंट हुआ है, बट जब पहली बार मोदी के लिए वोट किया गया था, इट वाज द ट्रांसफॉर्मेटिव वोट। दूसरी बार भरोसे का मत था। इस बार जो वोट दिए गए हैं, दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक कि हमको ये पार्टी चाहिए या ये पार्टी चाहिए। तो अपकमिंग इलेक्शंस वुड बी ऑफ मोर सरप्राइज टू एवरीवन कि कौन कहाँ पे कैसे काम करेगा। बट I don't think any of them is a very good fit as the Prime Minister after looking at the charismatic figure of Narendra Modi ji. True. But अगर आंसर देना है तो राहुल गांधी would be a better answer than प्रियंका गांधी, because प्रियंका गांधी अपना पहला इलेक्शन अभी बाई इलेक्शन में लड़ेंगे, और वो भी ऐसी सीट से जहाँ से उसका भाई चुन के गया था, वहीं आना है वापस। तो वायनाड में वापस जीत के कोई मतलब है नहीं, वो आप ही की सीट थी, आप ही को वापस मिल रही है। तो बेटर leader for Congress would be Rahul Gandhi by default. 3 Kathiawadi food items. Thepla, Gathia by default, and cha can we include? No, food items only. Every Kathiawadi sweet. Oh. Every Kathiawadi sweet. Do you have a sweet tooth? I have sweet teeth, not tooth. મને લાગે તમે સેવ ટામેટા ને બધું કહેશો. ના ભાઈ, એ તો બધું હલવું શાક કહેવાય. હલવું એટલે ઘરે કાંઈ બને એવું નથી, તો સેવ ને ટમેટા બનાવી લસણ ડુંગળી. હા, એ ઘરે પડ્યું જ હોય. સેવ ટમેટા ઇઝ લાઈક કે બધાના ઘરે પડ્યા જ હોય. આજે કાંઈ નથી, આળસ આવે છે મમ્મીને તો બનાવી નાખો સેવ ટમેટા. તો સેવ ટમેટા ઇઝ નોટ ધ थिंग, बट दिस आर द जिससे काठियावाड़ी जाने जाते हैं, दैट इज खाखरा, फाफड़ा, थेपला, गाठिया. So here we are done with our podcast. Done? Thank you for Great. your time. Thank you. And we have a token of appreciation from HLC CME Society to the Okay, Deputy thank Director of HLC CME Society. Thank you. Thank you so much, Very sir. much privileged.